I want to thank the Lord for this wonderful opportunity that I have to be with you during these 2 days. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अद्भुत मौके के लिए जो 2 दिनों का मेरा आपके साथ मुझे मिला है। You are celebrating your 55th annual convention. That is not a small thing. I thank the Lord for His grace that sustained this church in the last 55 years. और 55 साल तक जो परमेश्वर ने आप लोगों को संभाल के रखा है, आपको बढ़ाया है और आप जो अपना एनुअल कन्वेंशन मना रहे हैं उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना I चाहता am also very delighted because I am with Pastor Finney family, Sister Priya, Jonathan, Ethan. As Pastor Finney said, when I went to the college, Pastor Finney was in the graduating batch, and I was so impressed by Pastor's life, and he was our prayer leader. So I'm happy that I'm with him today in Ranchi. और मैं इस बात को देख करके भी बहुत खुश हूँ। पास्टर फिनी, उनके फैमिली, उनके बच्चों को भी देख करके खुश हूँ क्योंकि जब वो बाइबल कॉलेज में थे तो उस समय पे वो ग्रेजुएट लेवल पे थे और अब मैं उनके बढ़ोतरी को देख करके बहुत आनंदित हूँ। How many of you are happy today to be here? और कितने लोग खुश हैं आज यहाँ? Yes. John's Gospel chapter 1 and verse 9, verse 10 and 11. I'm going to read those 3 verses. You can open your Bible and look at these 3 verses together. और यूहन्ना उसका 1 का 9, 10, 11 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप भी अपने बाइबल में उसको देख सकते हैं। ओके, मैं इसे हिंदी में पढ़ने वाला हूँ। यूहन्ना 1 का 9 से 11। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। When I waited upon the Lord to receive a message for you in this annual convention, this verse God has impressed in my heart. और जब मैं इंतजार कर रहा था, मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि इस एनुअल कन्वेंशन के लिए क्या वचन परमेश्वर देना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने इस वचन को मेरे हृदय में डाला। I am already happy to see some of you have got a book, a pen. You're already writing this John 1:9. By the end of this time, that is tomorrow evening, I want all of us to learn this verse by heart. It should go in. और मैं बहुत खुश हूं कि कुछ लोग अपने साथ कॉपी और पेन लाए हैं, वो अभी से लिखना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कल जब कन्वेंशन खत्म होता है उस समय तक मैं चाहता हूं कि ये वचन हमें पूरी तरीके से याद हो जाए। In some places, the preachers do say, I have no time, I have to rush, and they straight away get into the message. और कुछ जगह पे जो प्रचारक है वो कई बार कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय है और वो बहुत हड़बड़ी में उस संदेश को लेते जाते हैं। But I have lot of time. लेकिन मेरे पास बहुत समय, So I am not in a hurry. और मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ। We have to understand this verse for our church, Amazing Life Church, and all the believers here in this 55th annual convention. God wants to speak to us through these verses. और इस वचन को हमें अच्छी तरीके से समझना है और इस एनुअल कन्वेंशन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसे हमें पूरी तरीके से समझ जाना है इस वचन। What does this verse mean? The true light which lightens everyone came into this world. और ये वचन का क्या मतलब है कि सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आई। To understand that, we have to know little bit about this 4th gospel. और इसे और समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है हमें उसे भी समझना पड़ेगा। As you know, this is one of the last books written in the New Testament. और ये जो पुस्तक है ये एक आखिरी पुस्तकों में से है जो नए नियम में लिखी गई थी। It is not just the last gospel arranged after Matthew, Mark, Luke and John. The last gospel. Not only that, in the entire New Testament, this is one of the last books. और मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना जो सुसमाचार है ये सिर्फ उसमें से सबसे आखिरी लिखा हुआ किताब नहीं है, लेकिन पूरे नए नियम में लिखे गए किताबों में सबसे आखिरी में से लिखे हुए किताबों में से एक है। Why I stress that is because that's very important for us to understand why it is written very late and there is a different way of looking at it. और क्यों ये इतने आखिरी में जाकर के लिखा गया, इसे भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। When a person is
dead all of a sudden. और अचानक से यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, What happens on that day? Heart attack happened. A 40-year-old person died. What happens on that day? और एक 40 वर्ष का व्यक्ति था, अचानक उसे हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया, उस दिन क्या होता? Everybody will cry. और हर कोई रोता। If he has children, they will come, Papa, you're gone. और यदि उसके बच्चे हैं तो बच्चे आके रोएंगे, पापा आप चले गए। Wife will say, the last word that he told me is, come, prepare chapati. I prepared chapati. Where is he? और उसकी पत्नी जो है वो ये बोल करके रोएगी कि जो आखिरी चीज उसने मुझसे बोला था कि मेरे लिए चपाती बनाना, मैंने बनाया, लेकिन वो कहाँ चले गए? And the company people say, there is paper and pen. He wanted to write something. We really wish we knew what he wanted to write. और जो उनके साथ काम करते थे, हो सकता है वो बोलेंगे उन्होंने एक पेपर और पेन मांगा था, लेकिन वो उसमें कुछ लिख भी नहीं पाए। हम जानना चाहते थे कि वो क्या लिखना चाहते थे। These are immediate responses. Immediate. और तुरंत में ये सारे भावनाएं लोगों के अंदर से आती What हैं। happens the next day during the funeral? What happens? और अगले दिन जब फ्यूनरल होता है, उन्हें दफनाया जाना होता है, तब क्या होता है? That day light will come. और उस दिन बहुत लाइट रहता है, ज्योति। First day there is no light. और पहले दिन कोई वहां लाइट नहीं जलाया जाता। First day there is no mic. और पहले दिन कोई माइक नहीं रहता। Second day mic came. और अगले दिन माइक आ जाता है, Pastors came. और पास्टर लोग आ जाते हैं। And everybody has a different vocabulary. और फिर उनके पास अलग अलग चीजें होती है उनके बारे में बोलने के This लिए। brother was a wonderful brother. और ये जो भाई थे बहुत ही अच्छे He भाई was थे। part of the church for the last 20 years. और पिछले 20 साल तक वो चर्च के साथ जुड़े हुए थे। It is not like the first day. और ये पहले दिन जैसा नहीं होता। First day everybody is pounding upon the chest. और पहले दिन सारे लोग छाती पीट रहे होते। Second day everybody is stable. और अगले दिन तक लोग थोड़ा संभल जाते। They are speaking a lot of things. और अब वो और भी बहुत सारे बातें उनके बारे में बोल रहे What happens after 6 months? हैं। और लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता? His daughter decides, I want to write about my dad. और उसकी बेटी निर्णय ये सोचती है कि मैं अपने पापा के बारे में कुछ लिखना She चाहती हूँ। is not going to cry. और अब वो रोने वाली नहीं है, She is thinking, अब वो सोच रही, where was my dad born? और मेरे पापा जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? Can she write that on the first day? और क्या वो पहले दिन जब वो मरे थे उस दिन लिख सकती थी? Tell me, can she write that on the first day? पहले दिन क्या वो लिख पाती? She cannot. वो नहीं लिख सकती थी। If somebody will go and ask her, where is your dad born on the first day? और पहले दिन जब वो मरे थे, कोई आके पूछता कि तुम्हारे पापा कहाँ पैदा हुए थे, What will happen? क्या हो जाता? I know little bit of Hindi. और मुझे थोड़ा बहुत हिंदी आता है। She will say, क्या आदमी है आप? Correct. My dad is gone. और मेरे पापा मर गए हैं, Heart attack. हार्ट अटैक You हुआ है। want to know where he was born? और आप जानना चाहते हो वो कहाँ पैदा हुए थे? If somebody goes and tell, which color your dad likes? और यदि कोई आके पूछता कौन सा कलर उन्हें पसंद, What will he say? What will she say? और वो क्या बोलती? क्या आदमी है? Correct. What will happen after 6 months? लेकिन 6 महीने के बाद क्या होता? She is thinking and writing. और वो सोच रही होती और लिख रही हो, My dad was born in Delhi. और मेरे पापा दिल्ली में पैदा हुए थे। He liked blue color. वो उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था। Every day morning he will get up by 5:30. और हर दिन सुबह वो 5 बजे उठ जाते थे। First day she cannot write. और पहले दिन वो इन सारी चीजों को नहीं लिख सकती। John is the last gospel. और यूहन्ना का जो सुसमाचार है, आखिरी सुसमाचार, He is taking a look at who is Jesus. और वो इस बात को देखने की कोशिश कर रहा है कि यीशु कौन है। Matthew stressed a lot about teachings of Jesus, words of Jesus, words. और मत्ती ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के शिक्षाओं के बारे में बहुत लिखा, यीशु मसीह Lot के of शब्दों के teaching, बारे में lot of teaching. बहुत सारे शब्दों को यीशु मसीह का उसने लिखा। It is like the funeral day message. और ये जो फ्यूनरल का दिन है, उस दिन के संदेश This जैसा। person was part of the church for 20 years. He used to sing this song. That is Matthew. और मत्ती का सुसमाचार कुछ ऐसा है कि ये चर्च का इतने साल से हिस्सा बने हुए थे, इस गीत को वो बहुत ज्यादा गाते थे। He is writing the words of Jesus, teachings of Jesus. और मत्ती यीशु मसीह के शिक्षाओं के बारे में लिख रहा है। Mark is writing about not words, works of Jesus. What did Jesus do? और मरकुस जो है वो ये लिख रहा है कि यीशु मसीह ने क्या किया था। Works of Jesus. यीशु मसीह के कामों के बारे में। He calmed the storms. और Calm the storm. Storm.
और उसने तूफान को शांत किया, He healed the blind person. उसने अंधे को चंगा किया, He did this miracle. Lame person healed, demon possessed people delivered. That is Mark's gospel. और Action. और मरकुस का सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला, इसे चंगा किया, उस अद्भुत काम को किया। And Luke is writing about the mission of Jesus. और लूका जो है यीशु मसीह के मिशन के बारे में वो लिख रहा था। Matthew wrote about the words of Jesus. और मत्ती ने यीशु मसीह के शब्दों के बारे में लिखा। Mark wrote about the works of Jesus. मरकुस ने यीशु मसीह के कामों के बारे में लिखा। Luke wrote about the mission of Jesus. It has to go to the ends of the earth. Luke has wrote. और लूका ने इस बात को लिखा कि यीशु मसीह का जो संदेश है, काम है, दुनिया तक फैलना है। But John is like a son reflecting after 6 months. और लेकिन यूहन्ना जो है वो एक बेटे के समान है जो 6 महीने के बाद सोच रहा है। In this case, he is reflecting this after around 60 years. और यहाँ पे यूहन्ना 60 साल के बाद इन बातों को दोबारा याद कर रहा है। Jesus is dead, resurrected and gone. यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो जिंदा हुए और वो अब चले गए। And 60 years John lived. और 60 साल उसके बाद यूहन्ना जिंदा रहा। By around the end of the first century, Matthew is written, Mark is written, Luke is written, John is thinking, I am going to write about my dad. और पहली शताब्दी के अंत तक मत्ती ने अपना सुसमाचार लिख लिया है, मरकुस ने लिख लिया है, लूका ने लिख लिया है। अब यूहन्ना चाहता है कि मैं अपने यीशु के बारे में कुछ लिखूंगा। All of you look at chapter 1 verse 1. Do you see something very different in chapter 1 verse 1 of John's gospel? और यूहन्ना 1 का 1 को आप ध्यान से देखिए, क्या उसमें आपको कुछ अलग दिखता है। In the beginning was the word. आदि में वचन था। Anybody remember any other portion of the scripture when you read chapter 1 verse 1 of John? और बाइबल में कहीं और क्या कोई सोच सकता है कि यूहन्ना 1:1 के जैसा कोई वचन लिखा हुआ है? Excellent. You will immediately recall Genesis 1:1. और तुरंत आपको उत्पत्ति 1 का 1 याद आता है। Matthew doesn't start like that. और मत्ती अपने सुसमाचार को ऐसा शुरू नहीं करता। Matthew talks about he is Abraham's son. और मत्ती अब्राहम के पुत्र के रूप में शुरू Mark करता है। starts in a very different way. मरकुस अलग तरीके से शुरू। John is saying, I am reflecting. 60 years have gone. Just like Genesis started, he is writing, in the beginning, God created was Genesis 1:1. Here in John, he starts, in the beginning was the word. Meaning, it is like a big bang, he says. और यूहन्ना अपने 1:1 को उत्पत्ति 1:1 के रूप में शुरू करता है कि कैसे शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और ये जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिग बैंग के रूप में शुरू हुआ। It's not Big Bang Theory. It's like a big event. और एक बहुत बड़े घटना के रूप में इसे शुरू करता है। Our Bible starts with that verse, isn't it? और हमारा जो बाइबल है इस वचन के साथ शुरू होता है। In the beginning, God created heavens and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। John is saying, I am going to start like that. और यूहन्ना बोलता है मैं इसी तरीके से शुरू करना Because चाहूँ, nothing else will match with who my Jesus is. क्योंकि और कोई चीज इसके साथ तुलना नहीं कर सकता कि मेरा यीशु कौन है। Just like the creation happened. और जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, In the beginning was the word. और आदि में वचन था। And who is this word? When you come to verse 12, 14, the word became flesh. This is talking about Jesus. In the beginning was Jesus. और यूहन्ना के 1 में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वही वचन ने देह को धारण किया और वो यीशु है। And what happens in Genesis? In the beginning, God created. Immediately after that, you will see, and God said, let there be, what is the next word? Let there be light. और जैसे परमेश्वर ने वहां सृष्टि की उत्पत्ति की, उसके बाद वहां लिखा हुआ है कि उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने ज्योति को बनाया। You look at chapter 1 verse 3. What do you see there? Chapter 1 verse 3. और यूहन्ना 1:3 में यदि आप देखते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? In him, in Jesus was life, and that life was the light of all men. और 4 में लिखा हुआ 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। In Genesis, God and light is there.
और उत्पत्ति में परमेश्वर और ज्योति हैं। John is writing here in John's gospel, Jesus was in the beginning and there was light. And in verse 5, light and darkness is there. Just like Genesis, God separated light and darkness, night and day. John is reflecting and writing a new Genesis. और जिस प्रकार से हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति को बनाया और उसे अंधकार से अलग किया, यूहन्ना 1:4 और 5 में भी हम देखते हैं कि वहां पे ज्योति के बारे में लिखा हुआ है, अंधकार के बारे में लिखा हुआ है। और इस तरीके से यूहन्ना उत्पत्ति के बारे में सोच करके यहाँ यीशु के बारे में बता रहा है। I was thinking yesterday about the man who is writing this, John. और कल मैं यूहन्ना के बारे में सोच रहा था जिसने इसे लिखा है। John, why you want to write another gospel? और यूहन्ना क्यों आप एक और सुसमाचार लिखना चाहते हैं? Already Matthew is written. मत्ती ने लिख दिया है, Already Mark is written. मरकुस ने भी लिख दिया है, Already Luke is written. लूका ने भी लिख दिया है। You are an old man. और आप तो एक बूढ़े व्यक्ति हैं। When John is writing this, he must be around 90 years. और जब यूहन्ना इसे लिख रहे थे तो हो सकता है वो 90 साल के होंगे। Now we don't know whether we will touch 90. और हमें That's a पता different story. और हमें पता नहीं कि हम 90 साल जिएंगे या नहीं But जिएंगे। in 90, that is the time to take care of your grandchildren. और 90 साल में आमतौर पे हम अपने पोते पोतियों का ख्याल रख रहे होते That हैं। is the time to read newspaper. और उस समय आमतौर पे लोग अखबार पढ़ रहे होते But हैं। John is saying, I'll write a gospel. लेकिन यूहन्ना बोल रहा है कि मैं एक सुसमाचार लिखना चाहता हूं। Like what happened in Genesis. और जैसे उत्पत्ति में हुआ था, Full darkness was there. पूरी तरीके से अंधकार था। God said, let there be light. और परमेश्वर ने बोला कि ज्योति हो जाए। John is saying, I am going to use the same vocabulary. और यूहन्ना बोलता है मैं उसी तरीके से उन्हीं शब्दों को In लेकर the लिखूंगा। beginning was Jesus. आदि में यीशु मसीह था And there was full darkness. और पूरी तरीके से अंधकार था। Just like light came in the beginning, Jesus came as a light to the world. और जैसे आदि में परमेश्वर ने ज्योति को दिया, यीशु मसीह ज्योति बनकर इस अंधकार दुनिया में आए। And John, how do you know about all this? और यूहन्ना आपको ये सारी बातें कैसे पता है? Did you hear from somewhere? कहीं से आपने सुना क्या That in the beginning was the word and he was light. From where did you know all this? कि आदि में ज्योति था और वो ज्योति संसार में आया? कहाँ से आपने ये By सुना? any chance, is there a SABC there in Palestine? और फिलिस्ती के देश में क्या कोई चांस है कि वहां भी कोई SABC कॉलेज है? You know what John will say? और पता है यूहन्ना क्या बोलेगा? I saw, मैंने देखा, I have seen. मैंने देखा है He was light. और वो ज्योति है। Look at chapter 1 verse 14. और 1:14 को यदि आप The देखेंगे, word became flesh and made his dwelling among us. Meaning, I was seated there. Jesus was there. He was with us. And then the next sentence, we have seen. My eyes have seen the glory. और वचन देहधारी हुआ 1:14 और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना ये बोल रहा है कि मैंने उस वचन को देह के रूप में देखा, वो मेरे सामने था, मैंने उसकी महिमा को देखा है। The same John has written epistles also. You know that. और इसी यूहन्ना ने आगे चिट्ठियों को भी लिखा है, आप ये जानते हैं। You know how John starts his epistle in 1 John chapter 1? How does he start? और पहला यूहन्ना का 1 में यूहन्ना अपने चिट्ठी को कैसे शुरू करता है? What we have seen. और जिसको हमने देखा है, What we have touched. जिसको हमने छुआ है, What we have experienced. जिसको हमने महसूस किया है। Why at age 90 you want to write? और क्यों 90 उम्र में वो लिखना चाहता था? Because I have seen. क्योंकि मैंने देखा है, Because my hands have touched. क्योंकि मेरे हाथों ने छुआ है, The glory I have seen with my eyes. और जिस महिमा को मैंने अपने आंखों से देखा है। And not just that. और सिर्फ इतना ही नहीं, In John's Gospel 13, you know that washing of the feet and the supper, John was next to Jesus. और यूहन्ना के 13वें अध्याय में जब पैरों को यीशु मसीह ने धोया और वहां पे उस भोजन को चेलों के साथ किया, यूहन्ना यीशु के बगल में था। Anybody knows who was on the other side? क्या किसी को पता है कि यीशु मसीह के दूसरे तरफ कौन था? Bible quiz. बाइबल क्विज। Anybody knows? On one side Jesus is here. I am John. Who was there on the other side? यीशु है, उधर यूहन्ना है, दूसरे तरफ कौन था? Excellent. Answer came. Judas was there on the other side. यहूदा इस्करियोती दूसरे तरफ।
This John is very close to Jesus. और ये जो यूहन्ना है वो यीशु के बहुत करीब रहता था। James, John, Peter, they are like the inner circle. और याकूब, यूहन्ना और पतरस जो है वो भीतरी लोग थे यीशु मसीह के। So chapter 1:9 is our key verse. और यूहन्ना 1:9 ये हमारा मुख्य वचन है। But I want you to get an idea of who John is. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि यूहन्ना Fourth कौन। gospel is a beautiful gospel. और जो चौथा सुसमाचार है बहुत सुंदर सुसमाचार I है। will give you one more introductory remark and we will move on to the text. और एक और बात मैं यूहन्ना के बारे में बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। In the first century, the church used symbols for these four gospels. For Matthew, for Mark, for Luke, John, symbols that captures what that writing is. और ये पहले शताब्दी में जो कलीसिया थी वो इन चारों सुसमाचार के लिए एक अलग चिन्ह के रूप में उसे पहचानने की कोशिश You करती। know what was the symbol that characterized Matthew? और मत्ती के सुसमाचार के लिए कौन सा चिन्ह उन्होंने देने की कोशिश की? Angel. और एक स्वर्गदूत। Because Matthew talks about genealogy, Jesus has come in human flesh, so he is like a divine man. An angel was used to portray Matthew's gospel. और कैसे कि यीशु मसीह अब्राहम का पुत्र होकर के, परमेश्वर के पुत्र होकर के इस संसार में आए, तो वो दिव्य रूप में उन्हें दिखाने के लिए एक स्वर्गदूत के रूप में मत्ती के सुसमाचार को चिन्हित किया And जाता। you know what was the symbol for Mark's gospel? और मरकुस के सुसमाचार के लिए कौन सा वो चिन्ह इस्तेमाल करते थे? Lion, एक शेर के चिन्ह का like the इस्तेमाल Lion करते। of Judah. और यहूदा के उस सिंह के रूप में। Again, another Bible quiz. What is Mark's emphasis? I already told you. Matthew emphasized the words of Jesus. Mark emphasized और मत्ती ने यीशु मसीह के शब्दों के बारे में बात किया। मरकुस ने किस बात पे ध्यान दिया था? excellent. The works of Jesus. So like lion. और कामों पे मरकुस ने ध्यान दिया था। और एक शेर के रूप में यदि मत्ती ने दिखाया है। So the symbol for Luke's gospel is ox. मार्क और लूक। Luke. Mark is lion. Luke is ox. ओके सॉरी। और मरकुस जो है वो एक सिंह के रूप में दिखाता है, और जो लूका है वो एक Ox. What is ox? बैल के रूप में उस जगह पे उसे वो दिखाता है। What does ox represents? और एक बैल जो है वो किस चीज को दिखाता है? Sacrifice. और एक बलिदान, एक भेंट को Lot दिखाता है। of weight. बहुत सारा बोझ उसके ऊपर At रहता the है, end, it is going to be slaughtered. और अंत में उसे वहां पे बलि किया जाना। Luke's emphasis is Jesus, you are going to give yourself away for our sins. और इस जगह पे ये दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान So करने वाले हैं। Matthew, angel. और मत्ती एक स्वर्गदूत के रूप में दिखा, Mark, lion. और मरकुस जो है एक सिंह के रूप में दिखाता Luke, है। ox. और लूका जो है वो एक बैल के रूप में उसे The दिखाता है। gospel that we are going to study, John, you know what was the symbol for John's gospel? और यूहन्ना के सुसमाचार के लिए कौन सा चिन्ह दिया जाता था? Eagle. और एक बाज के रूप में उसे दिखाया जाता था। Why eagle? एक उकाब, क्यों एक उकाब? Anybody? Eagle. और उस उकाब के बारे में यदि हम सोचते हैं क्यों? It soars very high. क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है It can see everything. और वो सब कुछ को देख सकता है। John is writing after 60 years. और यूहन्ना जो है वो 60 सालों के बाद लिख रहा He है, is in the sky. और वो आसमान में है, He can see everything. वो सब कुछ देख सकता है। In the beginning was the Word. और आदि में वचन था। Now, when we look at chapter 1 closely, और यदि हम पहले अध्याय को ध्यान से देख, all of you are there with me? You're opening to John's 1, Gospel chapter 1. पहला अध्याय को सब कोई ने खोल लिया है। There are 7 titles used for Jesus. और यहां पे यीशु मसीह को 7 अलग अलग नाम दिए गए। And our verse 9, the key verse, comes as the second title used for Jesus. और जो 9वां वचन है वो दूसरे नाम के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। Very यीशु मसीह को rich दिया गया। gospel, very rich gospel. और बहुत कुछ है इस सुसमाचार The में। first title is in verse 1, Jesus the Word.
और जो पहला बात यीशु मसीह के बारे में बोला गया है वो है यीशु जो वचन है। The word which created in Genesis. और उत्पत्ति में जिस शब्द ने सब चीज की सृष्टि की, With the word, God created the world. और उस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने संसार की रचना की। And John is saying that word has come in flesh, that is Jesus. Jesus the word. और यूहन्ना कहता है कि वही वचन ने देह को धारण किया और वो यीशु है। The second title is in verse 9, our key verse, Jesus the true light. और दूसरा जो बात यीशु मसीह के बारे में बोला गया है वो है यीशु जो सच्ची ज्योति है। That is our theme verse. We will study about that. और ये हम लोगों का मुख्य वचन है, थीम वर्स है जिसे हम अध्ययन करने In वाले। chapter 1 verse 34, you will see the third title used of Jesus. और तीसरा जो नाम यीशु मसीह को दिया गया वो 34 में हम देखते हैं। Anybody? What is there? Son of God. Excellent. परमेश्वर का पुत्र। And in chapter 129, you will see the fourth title used about Jesus. Chapter 1 verse 29. और 1 के 29 में हम देखते हैं कि चौथा बात जो यीशु मसीह के बारे में बोला। Anybody knows what is there? The Lamb of God. और परमेश्वर का मेमना। He is not just word. और वो सिर्फ वचन नहीं है। He is not just true light. और वो सिर्फ सच्ची ज्योति नहीं है। He is not just Son of God. और वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही नहीं He is है। the Lamb of God. और वो परमेश्वर का मेमना भी है। The fifth title is in chapter 1 verse 41. और जो पांचवा है वो 41 में है, 141। Anybody found out what is there? Messiah. और यीशु मसीह मसीह है। Messiah, the anointed one. और यीशु जो है वो मसीह है जो अभिषिक्त व्यक्ति है। Did you all see Andrew was to find his brother Simon, and what did Andrew tell Simon? We have found the Lamb of God? No. We have found the word? No. We have found the light? No. He said we have found the Messiah. और जब अंद्रियास पतरस के पास गया तो उसने क्या बोला कि हम लोगों को जो परमेश्वर का वचन मिल गया या फिर परमेश्वर का मेमना मिल गया या फिर सच्ची ज्योति मिल गया? नहीं, उसने बोला हम लोगों को मसीह मिल गया। The long awaited Messiah. और जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया था। 39 books Old Testament, they were looking forward. Messiah will come. और 39 जो किताब थे पुराने नियम के उसमें उन्होंने इंतजार किया कि वो मसीहा And John आएगा। is saying he has come. We have found the Messiah. और यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है कि मसीहा आ गया है, हम जानते हैं वो कौन The है। sixth title in chapter 1 is in 149. और जो इसके बाद का नाम है वो 1 के 49 में है। Can anybody find out what is there? He is the King of Israel. और वो इज़राइल का राजा है। Wow, he is the true king. और वो सच्चा राजा है। David, Saul, yeah, all of them were there, but Jesus is the true king. और दाऊद था, सुलेमान था और शाऊल था, लेकिन यीशु जो है वो है सच्चा राजा। And the last title in chapter 1 is in 151. और जो आखिरी जो नाम यीशु मसीह को दिया गया वह 1 के 51 में है। Let me see from here who can identify it first. From here, anybody, what is the last title in chapter 1? See, you're not looking at Son of Man. और जो आखिरी नाम है यीशु मसीह को दिया गया मनुष्य का पुत्र। One by one we are going to say, today, where have we come? और एक एक करके हम देखेंगे आज Pastor, हम कहाँ आए हैं। Pastor, I have come to Amazing Life Church. और पास्टर मैं अमेजिंग लाइफ चर्च आया। Pastor, I have come to this building. और मैं इस भवन में आया। But I want you to know. लेकिन मैं चाहता हूं आप जाने। Yeah, we are in this building, that is true. और जरूर हम इस बिल्डिंग में हैं। But we are before the word. लेकिन हम उस वचन के सामने We are before the light. हम उस ज्योति के सामने We are before the Son of God. और हम परमेश्वर के पुत्र के सामने We are before the Lamb of God. और हम परमेश्वर के मेमने के सामने We are before the Messiah. और हम उस मसीह के सामने We are before the King of Israel. और हम उस इज़राइल के राजा के We सामने are आए हैं before the Son of Man. और हम मनुष्य के पुत्र के सामने आए Can हैं। you give a hand of praise to Jesus, क्या आप who ताली is
जा King of सकते हैं उस Kings. यीशु के लिए, He is the Lord of Lords. और वो प्रभुओं का प्रभु है। The old man John is writing, we have seen the glory of the Lamb of और God. यूहन्ना इस बात को लिख रहा है, हमने परमेश्वर के पुत्र को महिमा दी, We have seen the glory of the King of और Israel. हमने उस राजाओं के राजा के महिमा को We देखा है, have seen the glory of the Word. और हमने उस वचन के महिमा को देखा है। I am excited because I am not preaching about a guru who lived, died and gone. और मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि मैं किसी ऐसे गुरु के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं जो मर I के चला am गया, preaching about God who came down in human flesh. लेकिन मैं उस परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा हूं जो मनुष्य के रूप में We आया, are worshiping God who created the universe. और हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जिसने ब्रह्मांड को बनाया, In the beginning he was there. और आदि में वो था, He was with God. और वो परमेश्वर के साथ He था, was God. और वो खुद परमेश्वर है, He took on human flesh and walked among humans. और उसने देह धारण किया और मनुष्य के बीच He में वास किया, healed people. उसने लोगों को चंगा He किया, brought peace to humankind. और उसने मनुष्यों के लिए शांति को लाया, But the world gave him cross. लेकिन दुनिया ने उसे क्रूस दिया, And God said, this is my lamb. और परमेश्वर ने बोला ये मेरा मेमना है, Without sacrifice, Joe cannot worship God. और बिना उस बलिदान के तुम मेरी उपासना नहीं कर सकते, Without sacrifice, my sins can never be forgiven. और उस बलिदान के बिना मेरा पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। What the blood of goat and bulls cannot do, Jesus, the Lamb of God, gave himself up, and we are sanctified, we are cleansed, we are made holy to be coming to the presence of God. और जानवरों का खून जिस बात को नहीं कर सकता था, यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया, शुद्ध किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। I wish I could talk about all the 7 titles. और मैं ये आशा करता हूं कि मैं सारे 7 नामों के बारे में प्रचार कर पाता For हूं। that we need 7 days. उसके लिए हमें 7 दिन चाहिए, In that way, we don't have much time. और इस तरीके से हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। Now we are going to zoom into 2nd title. और हम दूसरे जो नाम यीशु मसीह को दिया गया उस Because- पे ध्यान दें। As I told you, while I was praying for this meeting, this chapter 1:9 came to my heart very strongly. और जैसे मैंने बताया था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि क्या प्रचार करना है, यूहन्ना 1:9 बहुत ही भारी रूप से वो मेरे हृदय में आया। And I always ask the Lord, Lord, you told me something, you must confirm it when I go to those meetings. I always ask the Lord. और जब भी मैं कहीं जाता हूं, किसी भी मीटिंग में जाता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपने मुझे बताया ये प्रचार करो, आप इसे कंफर्म कीजिए। I came and sat there. और मैं आकर के वहां बैठा। I don't remember whether it was the worship leader or somebody who prayed. We are the light of the world. और मुझे याद नहीं किसने प्रार्थना किया ये, लेकिन उसने ये बोला कि हम जगत की ज्योति हैं। हम जगत की ज्योति है। I understood that. ज्योति, light. और मुझे समझ में आ गया ये शब्द ज्योति, लाइट। Chapter 1:9 is what God impressed in my heart. और 1:9 को परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला था। When I came and sat there itself, confirmation. This is what you must preach to the people. और जब मैं वहां आके बैठा तो परमेश्वर ने इस शब्द के द्वारा मुझे बता दिया, हाँ यही तुम्हें यहाँ आके प्रचार So करना था। God has something special for us in this annual convention. और परमेश्वर ने कुछ खास रखा है हमारे लिए इस एनुअल The कन्वेंशन। true light came. और सच्ची ज्योति आई। Look at 1:9. और 1:9 को देखिए। What we must do to understand 1:9 is we have to just look at the previous verse 7 and verse 8. और 9 को समझने के लिए हमें इतना करना है कि 7 और 8 को जो उसके पहले देखना। Because to understand that 1:9 true light, there is something which happens in the previous verse. और सच्ची ज्योति को समझने के लिए हमें कुछ देखना है जो 2 वचन पहले हुआ। You know who is talked about in chapter 1 verse 6, 7, 8? A person is talked about there. Who is he? और- Is he Moses? Is he Elijah? Who is the one who is talked about in 6, 7, 8? और 6, 7, 8 में एक मनुष्य के बारे में बात की जा रही है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। वो कौन है? क्या वो एलिया है? क्या वो मूसा है? कौन है वो? Anybody from here? यहां से क्या कोई बता सकता है? I hear correct answers from the back every time, but I want to hear from you. यहां से मुझे सही जवाब। Who's there?
John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात हो रहा है। To understand 1:9, the true light came. और इस लाइन को समझने के लिए कि सच्ची ज्योति आई, What is the background of that? और उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या थी। John the Baptist is saying, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा or है? rather, the one who is writing? कौन लिख रहा है? An old man John, और एक बूढ़ा व्यक्ति यूहन्ना writing after 60 years. 60 साल के बाद लिख रहा है। He is writing in verse 8. और 8 में वो लिख रहा है, John, he himself, meaning John the Baptist himself was not the light. और वो यूहन्ना इस बात को लिख रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद वो ज्योति नहीं था। Did you all see that verse? Did you all see that verse? John the Baptist came as somebody who prepared the way for Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार्ग को तैयार करने वाले के रूप में आया। Again, Bible quiz. Did John do any miracles? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई अद्भुत काम या आश्चर्य कर्म किया था? No, नहीं, not even one. एक भी नहीं किया। John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला prophet, और एक भविष्यवक्ता था, voice in the wilderness. और वो जंगल में वो शब्द था, He prepared the way for Jesus. Come, Jesus. और यीशु के लिए उसने रास्ता तैयार किया था कि Did he आइए। do any miracles? क्या उसने कोई अद्भुत काम नहीं किया? You're right. He did not do any miracle. और आप सही हैं, उसने कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किया। So the old man John is writing. और ये बूढ़ा व्यक्ति यूहन्ना लिख रहा है। What is his heartbeat? He wants to write about whom? और वो किसके बारे में लिखना चाहता है? He wants to write about Jesus. और वो यीशु के बारे में लिखना चाहता है। But to talk about Jesus, he is saying John the Baptist. You remember John the Baptist? लेकिन यीशु के बारे में लिखने के लिए वो इस बात को याद दिला रहा है कि यूहन्ना भविष्यवक्ता वो बपतिस्मा देने वाला, क्या वो याद है आप? So it is like you are expecting a minister to come to your school. और वो कुछ इस तरीके से है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि एक मंत्री आपके स्कूल में आने वाले हैं। Your school anniversary, you are all ready with the bouquet to receive minister. और स्कूल के उस एनिवर्सरी में आप इंतजार कर रहे हैं फूलों को लेकर के कि वो मंत्री आएंगे। And a Scorpio came fast. और एक तेजी से एक स्कॉर्पियो आता है। And there were 5 with the bouquet. One from the bouquet went on with the bouquet. और 5 जो लोग खड़े थे वो एक जन बुके लेकर के जाता है उस स्कॉर्पियो के पास। And the headmistress is saying, "Hey, wait! He is not minister." और जो वहां की वो हेड मिस्ट्रेस है वो उसको बोलती है कि रुको, वो मिनिस्टर नहीं है। See, imagine if you were with the bouquet, what will you feel? और यदि आप वो फूल लेकर के जा रहे हो तो आपको कैसा लगता हो? You will feel the sand, let it go. I don't want to go back and sand. और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, अब मैं वापस जा करके खड़ा नहीं होना चाहता। That was just a policeman coming. Minister is yet to come. और जो मंत्री है उसके आगे जो पुलिस वाला था वो उसकी गाड़ी थी। True light minister is 1:9. He is coming. और जो सच्ची ज्योति है वो अभी तक आई नहीं थी, वो आने वाली थी। And John is saying, don't make a mistake. और यूहन्ना जो लिख रहा है वो बोल रहा है गलती मत करना। John the Baptist came. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। He himself was not the light. लेकिन वो खुद वो ज्योति नहीं था। We have to understand this, my dear people of God. और इस बात को हमें समझना है। In this annual convention, you have to understand this. और इस एनुअल कन्वेंशन में हमें इस बात को समझना है। If you look at human beings, और यदि आप मनुष्यों को देखें, you will be depressed soon. और आप बहुत जल्दी ही दुखी या परेशान हो जाएंगे। I am expecting he will do something for my future. और मैं आशा करता हूं कि वो मेरे भविष्य के लिए कुछ कर दे। I am expecting they may help me with the house construction. और मेरे घर को बनाने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो थोड़ा सा मदद कर दे। My daughter's education, I think they may help. और मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये लोग कुछ मदद कर दे। Human beings will fail you. और मनुष्य जो है आपको निराश करेंगे। This is 55th annual convention.
और ये 55वां एनुअल कन्वेंशन। If God's coming tarries, there will be another annual convention next year, right? और यदि यीशु मसीह के आने में अगर और थोड़ी देरी होगी तो अगले साल फिर से एनुअल कन्वेंशन For होगा। us to be in the Kalesia, और हमारे लिए कि हम इस कलीसिया में रहें, we should know there is only one true light. और हमें जानना है कि सिर्फ एक ही सच्ची ज्योति है। We should know John the Baptist is not the light. और हमें जानना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो ज्योति नहीं था। Yesterday night it came as a burden in my heart to tell you this. और कल की रात ये एक बड़े बोझ के रूप में मेरे हृदय में आई कि मैं आपको बताऊं। While sleeping itself, I woke up several times yesterday night. और कल सोते हुए ही मैं कई बार रात में जाग गया। Because I want to tell you this. This is a very important thing. क्योंकि मैं चाहता था कि आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है। Old man at the age of 60 is writing, he could have just written Jesus the true light, right? और जो बूढ़ा यूहन्ना है वो लिख रहा था, वो बस कुछ भी ऐसे लिख करके चला जाता कि यीशु ज्योति था। But first he is saying, he himself, he was not the light. लेकिन पहले वो ये बता रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति नहीं था। Our eyes should be on the right person. और हमारी आंखें जो है वो सही व्यक्ति के ऊपर होनी Our चाहिए। worship should be to the right person. और हमारी आराधना जो है वो सही व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। Otherwise, our car will meet with accident soon. नहीं तो जिस गाड़ी में हम चल रहे हैं बहुत जल्दी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। I am not talking about Ertiga car. I am talking about your and my life. और मैं धरती में आपके पास जो कार है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका और मेरा जीवन इसके बारे में बात कर रहा हूं। After leading in worship, it is possible if your eyes are not on true light, you will not come to church after 3 weeks. और यदि आपकी आंखें सच्ची ज्योति के ऊपर नहीं है तो हो सकता है 3 सप्ताह के बाद आप चर्च नहीं आएंगे। You will say, why this happened to me? आप बोलेंगे ये मेरे साथ क्यों हुआ? I did everything for the church. और मैंने कलीसिया के लिए सब कुछ किया। I gave money to the church. मैंने पैसा दिया चर्च, I gave health to the church. और मैंने मदद किया कलीसिया But की। why it happened to me? लेकिन ये मेरे साथ क्यों हुआ? We should understand we are not doing anything for the church to please a man. और हमें समझना है कि कलीसिया के लिए जो हम कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। We are not doing anything from the pulpit or from the pews to get a good name in somebody's book. No. और इस पुलपिट से या वहां बैठ करके हम कुछ अच्छा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी के सामने हमारा नाम अच्छा होगा। John the Baptist is not the light. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो ज्योति नहीं If था। we don't understand that, we will worship John the Baptist. Finally, John the Baptist is beheaded. और यदि हम ये नहीं समझ पाएंगे तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उपासना करेंगे, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि उसके गले को काट दिया गया था। Then what will happen to us? उसके बाद हमारा क्या होगा? Our ministry will end. हमारा जो मिनिस्ट्री है, सेवका, ये खत्म हो जाएगा। Our worship is gone. और हमारी जो आराधना है वो खत्म हो जाएगी। Do you know that doubt came to John the Baptist himself? और क्या आपको पता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद इस बात को उसके अंदर ये शंका आ गई थी, डाउट आ गया। What did John the Baptist preach all this while? और इतने दिनों तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया? He, Jesus, is the Lamb of God. वो यीशु, वो परमेश्वर का मेमना है। I am just coming to prepare the way for him. और मैं तो सिर्फ उसके लिए रास्ता तैयार करने को आया हूँ। But when John is in prison, you know what is he saying? लेकिन जब वो जेल में था तो उसने क्या पूछा था? In Matthew's Gospel 11, it is there. He is saying, are you the one or should I expect somebody else? और मत्ती उसके 11 में ये लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को भेजकर यीशु से पूछा कि क्या तू वो मसीहा है या फिर हम किसी और का इंतजार करें? These days it is all, this interview trend is there, interview vibe. और इन दिनों में Interview, you want to interview, right? ओके, आज के दिनों में एक दूसरे का इंटरव्यू लोग बहुत ज्यादा लेना चाहते So when John the Baptist is in prison, let's say I am going to interview him. और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, ये सोचिए आइए कि मैं उसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। Hello, John, are you the one who preached? और जॉन, क्या आप हैं जिन्होंने प्रचार किया? Yes. हाँ, मैंने ही प्रचार किया।
So Jesus is the Messiah, isn't it? और यीशु जो है वो मसीहा है कि नहीं? Well, I thought so. मैंने सोचा तो था I preached about it. और मैंने ये प्रचार भी किया था, But I am little puzzled now लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, because I am in prison. लेकिन क्योंकि मैं जेल में हूँ। So again my question, will you continue your ministry? और फिर मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि क्या आप अपनी सेवकाई को आगे जारी रखना चाहते हैं? What will John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलेगा? I really don't know. पता नहीं। You know why you should not make John the Baptist the light? और पता है क्यों आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ज्योति नहीं He बनाना? himself will doubt. क्योंकि वो खुद डाउट करेगा या फिर वो उस जगह पे विश्वास नहीं कर पाएगा। Yes, Jesus told that he is the greatest among all the people who were born out of woman. और जरूर यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला कि जितने पैदा हुए हैं उनमें से वो सबसे महान है, He is great in the kingdom of heaven. और वो स्वर्ग के राज्य में भी महान है। But he doubted. लेकिन उसने उस जगह पे विश्वास नहीं किया। The one who preached, you are the Lamb of God. जिसने ये प्रचार किया कि वो परमेश्वर का He मेमना है, himself said, are you the one? और वो खुद इस बात को पूछने लगा कि क्या तू ही वो है, Never make that mistake. और कभी ये गलती ना करे। That is why 1:8 is important to understand 1:9. और इसीलिए 1:8 जरूरी है कि हम उस व्यक्ति को पहचानें। He himself was not the light. वो खुद वो ज्योति नहीं था, He came only as a witness to the light. और वो सिर्फ उस ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए आया था। Actually, if you ask John earlier in his life, if you interview him, John the Baptist. और यदि आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले पूछा होता, In chapter 1, verse 21 onwards, interview is happening. You look at chapter 1:21. और 1:21 से आगे यदि आप देखेंगे, आप देखिए 1:21, वहां ये इंटरव्यू हो रहा। Look at 1:21. Is there an interview happening there? क्या वहां पे कोई इंटरव्यू They सवाल जवाब हो asked रहा? you, then who are you? तब उसने उनसे पूछा तो फिर कौन है? Are you Elijah? क्या तू एलिया है? He said, I am not. उसने कहा मैं नहीं हूं। Are you the prophet? क्या तू वह भविष्यवक्ता है? What did John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या No, I am not. कहा? नहीं। Finally, they said they asked in the interview, और आखिर में इंटरव्यू tell us पूछा, who are you? तो कौन है तू? Then what did he say? तब उसने क्या कहा? John replied, I am voice in the wilderness. और उसके बाद यूहन्ना ने इस बात को बोला, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। What was the first title used for Jesus? और यीशु के लिए जो पहला नाम है वो क्या दिया गया था? Title, first title, word. What is John saying? I am? और यूहन्ना क्या अपने बारे में बोल रहा है? मैं कौन हूं? I am voice. और मैं वो शब्द हूं, I am not word. और मैं वो वचन नहीं हूं, I am voice. मैं उस जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। What is the second title used for Jesus? और यीशु के लिए जो दूसरा नाम क्या दिया गया था? True light. सच्ची ज्योति। And John, about John the Baptist, John the writer is saying, he is not the light. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यूहन्ना जो चेला है वो इस बात को बोल रहा है कि वो सच्ची ज्योति नहीं है। Very interesting. As a minister, as a preacher, I should know about this. और एक प्रचारक के रूप में मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। I am not the word. मैं वो वचन नहीं हूं, I am not the light. मैं वो ज्योति नहीं हूं, I am just a voice. और मैं सिर्फ वो शब्द हूं। Look at chapter 3:27. Again this is happening. 3:27. John 3:27. यूहन्ना 3:27। To this John replied, a person can receive only what is given them from heaven. यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। What is this? और ये क्या है? John is openly saying, और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है खुले तौर पे बोल रहा है, I know about my ministry. मैं अपनी सेवकाई के बारे में जानता हूं, I am not the word. और मैं वो वचन नहीं हूं, I am not the light. मैं वो ज्योति नहीं हूं। Because if I make myself the word,
क्योंकि यदि मैं अपने आप को वचन ठहराने की कोशिश if I करूं, make myself the light, यदि मैं अपने आप को वो ज्योति ठहराने की कोशिश this करूं, movement will not go. और जो मेरी सेवकाई चल रही है वो आगे नहीं बढ़ेगी. That is why in 329, the bride belongs to the, और What is- 29 में क्या लिखा हुआ है? दुल्हन किसकी है? the bridegroom. दूल्हा की है. John the Baptist is not the bridegroom. और यूहन्ना ये बोलता है कि मैं दूल्हा नहीं हूं. What is he saying? The friend who attends. 329. John the Baptist himself is saying about him, I am not bridegroom. I am just a friend of bridegroom. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को बोल रहा है, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं वो दूल्हे का मित्र हूं. I am not word. I am only a voice pointing you to the word. मैं वो सच्चा वचन नहीं हूं, मैं सिर्फ वो शब्द हूं जो उसकी ओर दिखाता है. I am not the true light. I am just a witness to the light. और मैं वो सच्ची ज्योति नहीं हूं, मैं उस ज्योति का गवाह हूं. And in 329 he say, I am happy as the friend of the bridegroom. I am happy that his bride is getting ready. और ये उस दूल्हे के मित्र के रूप में मैं खुश हूं कि दुल्हन उसके लिए तैयार हो रही है. Now we can look at 1:9. और अब हम 1:9 को देख सकते हैं. The true light that gives light. और वो ज्योति जो सारे लोगों को ज्योति देती है. So we are going to explore that phrase, the true light. Why true light? और सच्ची ज्योति, क्यों इसे सच्ची ज्योति कहा गया? And we will continue this in the next sessions also. So I encourage all of you, if you have time in between, I know all of us are busy, but if you get time in between, you can read chapter 1, get yourself familiar. Jesus the light. And what must I do? That is what God wants to speak to you during these days. और जरूर मैं जानता हूं कि आप लोग बिजी हैं, आप लोगों लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यदि आप थोड़ा सा समय निकाल सके तो पहले अध्याय को पढ़िए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये सच्ची ज्योति जो यीशु है वो क्या है और मुझे क्या करना है. The true light. सच्ची ज्योति. I like how the Amplified Bible, those of you who are using English Bibles, you know there is a version called the Amplified Bible. और जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग जानते हैं कि एम्पलीफाइड बाइबल करके एक वर्जन आता है. So they have put it this way to understand and define true light. They have used words like the genuine, the perfect light, the steadfast light. और जो सिद्ध है, जो सच्ची है और जो पक्की है, The real light. और वो असली ज्योति. No man is real light. और कोई भी मनुष्य वो असली ज्योति कभी नहीं बन सकता. The true light. और जो सच्ची ज्योति The genuine light. और जो पक्का है. So this true light, one of the way to understand true light is in the light of fake lights. और एक तरीके से हम सच्ची ज्योति को अच्छे से समझ सकते हैं वो जब हम उसकी तुलना नकली ज्योति के साथ करते हैं. In the context which we are living in, और जिस माहौल में आज हम जिंदा हैं, there are a lot of people who claim to be light. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं ज्योति हूं. You have financial problem, come to me. और यदि आपके पास पैसों की दिक्कत है मेरे पास आई. No babies, come to me. यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो मेरे पास आई. If you have some problem in your family, no peace, he is like a guru, come to me. और यदि परिवार में परेशानी है, शांति नहीं है, वो एक गुरु के समान बोलेगा मेरे पास आइए. And thousands of people are going searching for light in our world. और आज इस दुनिया में हजारों लोग उनके पास जा रहे हैं उस ज्योति को ढूंढते हुए. Light represents blessing. और जो ज्योति है वो आशीष को दिखाती है. Light represents peace. और ज्योति जो है शांति को दर्शाता है. Light represents joy. और ज्योति जो है वो आनंद को दर्शाता. Why it is said the true light. और यहाँ क्यों लिखा हुआ है सच्ची ज्योति? If you give 500 rupees notes, you are taking from the pocket and you're counting and you're picking one and you're giving it. This is true. This is true currency. Then what does that mean?
और यदि आप अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं और 500 रुपए निकाल करके उसे देते हैं या फिर दिखाते हैं, ये सच्चा नोट है 500। In the pocket, there are a lot of fake. और पॉकेट में बहुत सारा नकली है। 1-9, true light. और लेकिन एक ज्योति जो है There वो are- सच्ची ज्योति, There are many lights. और बहुत सारी ज्योतियां हैं। John the old man is saying the true light. और ये जो बूढ़ा व्यक्ति यूहन्ना है वो लिख रहा है सच्ची ज्योति। He is not just claiming to be light. और वो ये नहीं बोल रहा है कि वो सिर्फ ज्योति बनना चाहता है, He is not fake light. और वो नकली ज्योति नहीं है, He is genuine light. और वो सच्चा है, Steadfast light. और वो पक्का है। My dear people of God, you are in the presence of the true light. और मेरे प्रियो, आप उस सच्ची ज्योति के उपस्थिति में, We are not in the presence of somebody who claims to be light. और हम किसी ऐसी की उपस्थिति में नहीं है जो ये दावा करता है कि वो You सच्चा have है। not come to see a preacher today. और आप एक प्रचारक को देखने नहीं God आए, may use a preacher. और जरूर परमेश्वर एक प्रचारक का इस्तेमाल You have करता है। not come to see a pastor today. और आज आप एक पास्टर को देखने Though नहीं आए, pastor is needed in the church. और जरूर पास्टर की जरूरत है But कलीसिया में। preacher, pastor and believers have come to the true light. लेकिन जो प्रचारक है, पास्टर और हम विश्वासी हैं, वो सच्ची ज्योति के पास The आए, genuine light. जो पक्का है। There is a second meaning to it. It is not just in contrast to fake. True light has come. और ये सिर्फ नकली ज्योति के सामने नहीं, लेकिन एक सच्चा ज्योति हमारे सामने। It also means the ultimate light. और इसका मतलब ये भी है कि वो सबसे ऊपर जो है, वो सबसे पक्का जो है, और सबसे अंतिम जो है। Not fake light, true light. That is there. जरूर नकली और सच्चा का अंतर हम देखते हैं। The other way of looking at it is whatever you had so far is partial. और इसको देखने का एक और तरीका यह है कि जो भी आपके पास अब तक था, हो सकता है कि वो कुछ था, थोड़ा था। True in the sense of fullest. और सच्चा इस संदर्भ में कि ये परिपूर्ण है, संपूर्ण है, The ultimate. और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। Bible quiz. बाइबल क्विज। Was there light in the Old Testament? और पुराने नियम में क्या ज्योति था? Yes, no. Huh? Hey? Where? कहां? Genesis itself, light was there. In a symbolic way, light was there. Genesis 1 is literal, light, sun, everybody can see. In symbolic way, what do you see in Psalm 190, 105? Look at Psalm 119, 105. 19? 105. 119, 105 भजन सही। The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. और मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरे पांव के लिए दीपक है। Old Testament light was there. और पुराने नियम में ज्योति था, Word was the light. और वचन ज्योति था, Prophets were all showing the light. और जो भविष्यवक्ता थे वे सारे लोग ज्योति को दिखा रहे थे। Jeremiah showed light, और right way. यर्मया जो है वो ज्योति को दिखा रहा था, Isaiah told this is the right way, light. और यशायाह जो है वो ये दिखा रहा था, ये सच्चा मार्ग है, वो भी But ज्योति। what is John saying? लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा? Yeah. In the Old Testament, light was there. जरूर पुराने नियम में ज्योति था, You had 39 books. और 39 किताब आपके You पास, have prophets. आपके पास भविष्यवक्ता थे, You have law. आपके पास नियम था, Law was light. और वो भी ज्योति था। But John is writing, the old man is writing, लेकिन यूहन्ना जो बूढ़ा व्यक्ति है वो लिख रहा है the true light. जो सच्ची ज्योति। Meaning what? उसका मतलब क्या है? They all were pointing to this. Now the ultimate has come. और वो सारे इसकी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन अब वो संपूर्ण आ गया है। When you look at 117, you will understand what I'm saying. Look at 117. और यूहन्ना 1:17 को यदि आप देखेंगे तो आपको For समझ the में आएगा। law was given through Moses, और व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दी गई, grace and truth came through Jesus.
परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची True light came. और सच्ची ज्योति आई। Meaning what? इसका मतलब क्या है? Law was there. व्यवस्था था, Light was there. ज्योति थी उस समय, Moses was there. मूसा था उस समय, Light was there. उस समय भी ज्योति But थी। now fullness has come. लेकिन अब वो संपूर्ण आ गया है Ultimate has come. और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। Law was there. व्यवस्था था, Now word is there. लेकिन अब वो वचन है। Prophet was there. भविष्यवक्ता थे, Now the greatest prophet is there. लेकिन अब सबसे बड़ा भविष्यवक्ता Moses है। was there. मूसा था, Now the greatest leader is there. लेकिन अब उससे बढ़कर एक लीडर The वहां true light has come. और वो सच्ची ज्योति आ गई है। In opposition to fake lights. और नकली ज्योति से उल्टा In contrast to partial lights. और उस थोड़े से ज्योति से बढ़कर The true Jyoti has come. और वो सच्ची ज्योति आ गई है। In this annual convention. और इस एनुअल कन्वेंशन May में God give us a revelation into chapter 1 verse 9. और 1:9 में परमेश्वर हम लोगों को और प्रकाशन दे। Even to understand scripture, you need that insight. और इस वचन को समझने के लिए भी आपको वो इंसाइट चाहिए। I see many people, they love the law, but they have not seen true light. और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो व्यवस्था से प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने सच्ची ज्योति को नहीं पाया। They read the Bible. वो बाइबल पढ़ते हैं They have a lot of rules, और उनके पास बहुत सारे नियम हैं, but they have not seen the true light. लेकिन उन्होंने उस सच्ची ज्योति को नहीं पाया। They read Bible in the morning, और जरूर वो सुबह बाइबल पढ़ते हैं, but have not behold the true light. लेकिन उन्होंने उस सच्ची ज्योति को थामा नहीं है। During the sessions, God wants us to have an encounter with the true light. और इन सेशंस के दौरान परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा उस सच्ची ज्योति के If साथ you आमना and सामना I हो। have an encounter with the true light, और यदि आपका और मेरा उस सच्ची ज्योति के साथ then सामना your हो, life, my life will never be the same again. तो आपका जीवन मेरा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। Apostles saw the true light. और उन चेलों ने उस सच्ची ज्योति को देखा, John saw the true light. और यूहन्ना ने उस सच्ची ज्योति को देखा। People said, "We will kill you." और लोगों ने बोला कि हम तुम्हें मार डालेंगे। People saw, they told Peter and apostles in Acts 4, "Don't preach about Christ any longer." और प्रेरितों के काम 4 में लोगों ने बोला पतरस को कि इस नाम से और प्रचार मत करना। And who is this Peter? और ये पतरस कौन है? You know Peter, right? आप पतरस को जानते हैं। Before a young woman, he said, "Jesus, I don't understand." और एक औरत के सामने जब उसने उससे पूछा कि यीशु क्या तू भी यीशु के साथ है, उसने बोला ये यीशु ये कौन है, मैं नहीं जानता उसे। 3 years he was with Jesus. 3 साल यीशु के साथ वो था। A young girl asked, "You were one of the preachers of Jesus, right?" और उस औरत ने पूछा तुम भी तो उन चेलों में से एक हो। Sometimes it happens in our school, isn't it? और कई बार ये हमारे स्कूल में भी होता है। आप क्रिश्चियन है क्या? हम कलीसिया जा रहे हैं क्या? कलीसिया मतलब why? और क्यों? Are you a Pentecostal believer? और क्या आप पेंटिकॉस्टल विश्वासी हैं? Pentecost? What? Why? क्यों? No conviction. और क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है। Singing songs, everything is there. और जरूर हम गाना को गाते हैं, सब कुछ But करते हैं, outside, लेकिन बाहर, before young girl, लेकिन उस जवान औरत के सामने, I don't know what you're saying. और मुझे पता नहीं अब तुम क्या बोल रही हो। Jesus, I don't know, but I like you. यीशु के बारे में मुझे पता नहीं लेकिन मुझे तुम पसंद हो। That is when true light encountered Peter. और उसी समय में वो सच्ची ज्योति पतरस के सामने आई। Sanhedrin told, "Don't preach about Jesus." और उन लोगों ने जब बोला कि यीशु के नाम से प्रचार मत करना, You know what did Peter say? आपको पता है पतरस ने क्या कहा? Should I obey you or should I obey God? क्या मैं तुम मनुष्यों की सुनूं या परमेश्वर की सुनूं? Because true light invaded him. क्योंकि वो सच्ची ज्योति उसके अंदर आ गई थी।
this true light is going to touch our lives during these days. और इन दिनों में ये सच्ची ज्योति हम लोगों को छुएगी We are not in front of fake light. और हम उस नकली ज्योति के We सामने are नहीं not हैं। in front of partial light. और हम उस अधूरे ज्योति के सामने We नहीं are in front of Jesus, the Word, the Lamb of God, the true light, Son of Man, Son of God. We are in front of the fullest, ultimate revelation. क्योंकि हम यीशु के सामने हैं जो वो सच्ची ज्योति है, परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है, उस संपूर्ण परिपूर्ण ज्योति के सामने हम। Shall we all look to the Lord in prayer? I want you to close your eyes for a minute and ask the Lord, Lord, give me an encounter into the true light. और आइए हम प्रार्थना करें और अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि मैं उस सच्ची ज्योति के सामने आना चाहता हूं। Lord, in this convention, may I not stop with partial. और इस कन्वेंशन में मैं अधूरे में नहीं रहना चाहता Take me to the ultimate. और मुझे उस संपूर्ण ज्योति में ले जाइए Take me to the fullest. और उस संपूर्ण ज्योति में ले जाइए Let me not go before a man. और मैं मनुष्य के सामने ना John जाऊं the Baptist is not the light. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो ज्योति He नहीं is था। just a voice. और वो सिर्फ एक शब्द था He is not the bridegroom. और वो दूल्हा नहीं था He is just a friend of bridegroom. और वो दूल्हे का मित्र था। Set our priorities right. और आइए हम अपने बातों को सही करें Set our focus right. और आइए हम अपने ध्यान को सही चीज पे लगाएं। Would you all open your mouth and just pray for a minute? Everybody, open your mouth and just pray. और सबको अपने मुंह को खोलकर थोड़ी देर के लिए Oh, प्रार्थना करें true light, I come to you. कि वो सच्ची ज्योति से आपका मुलाकात You हो जाए are the true light. और यीशु आप वो सच्ची ज्योति Help me, Lord, to have a revelation about you. और आपके बारे में उस प्रकाशन को मुझे Help दीजिए। me to have a clear vision about you. और आपके बारे में वो सही दर्शन को मुझे दी Like John, help me to reflect on you. और यूहन्ना के समान